तो अब देखें क्या 5 हर्डल हैं टू बिकम ए क्रिएटिव पर्सन. द नेचर गिव्स एवरीबडी एनर्जी दैट इज क्रिएटिव. ये हम पहले बात तय कर चुके हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं ना. It becomes destructive only when it is obstructed, when no natural flow is allowed. They say you have a stupid idea, forget about it. तो आदमी चुप करके बैठ जाता है. Self-consciousness is one of the hurdles in life to become creative. Consciousness is something different than being a self-conscious. Self-consciousness कैसे होती है? It's a disease. You look at this like that a river is flowing, and but the river of consciousness is not flowing naturally. Something foreign material has fallen into the river of the consciousness, something which is very alien, something that cannot be absorbed by the river, something that cannot become part of the river, something that resists becoming part of the river. Hence, the self-consciousness is morbidity. So the first thing to be understood is the difference between self-consciousness and consciousness. Consciousness has no idea of I. I means the ego. It has no idea of one's separation from the existence of self. It does not know any barriers of any kind. कहीं कोई boundaries नहीं है, कुछ नहीं है, मैं स्वच्छंद पक्षी की तरह से उड़ सकता हूँ. That is consciousness. You can succeed only when you are wholesome, as a whole, with the God, with your 100%. You cannot succeed when you go against the nature. And if you are frustrated because you are working against the nature, remember, you are creating a misery for yourself. Many times you swim in a stream, you swim upstream or you swim downstream. Lekin maximum people want to swim on a upstream. Why so? You can have success only after if you will face the challenges. That makes you perfect, according to me. Yes, so that is your ego. Your ego is that, ego is always telling you effort to go upstream. That's why they say people enjoy doing hard things. Why? Because when you face a hard thing, your ego becomes subtle, sharp, and there is a challenge. ये अपने को खुद की प्रशंसा करना, खुद के बारे में अच्छा सोचना, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो ईगो है आपकी. Creating difficulties around you is itself is a ego. I want to ask a simple question, sir. That having this kind of ego, or I can say एक जिद जिसको बोलते हैं, to succeed, isn't it necessary to create something different? Because creativity is something creating new and different from what it is there existing. So isn't that ego good, and isn't that necessary in a person to be creative? जिद और ईगो ये कभी मिलते नहीं हैं. आपके 9 जो बिजनेसेस हैं उनमें से आपने 3 बिजनेस बंद किए, जो उनका प्रॉब्लम हुआ उसमें, तो आपने उसमें आंसर भी दिया है कि वो इसलिए बंद किए क्योंकि 3rd और 4th पोजीशन, आई डोंट लाइक दिस 3rd एंड 4th पोजीशन. तो वो 3rd और 4th पोजीशन वो ईगो की वजह से लाइक नहीं होती, या आपका जो वो है कि कॉन्फिडेंस, मुझे 3rd पोजीशन नहीं, मेरे को फर्स्ट ही रहना है? 2 क्वेश्चन है आपके, एक क्वेश्चन नहीं है. एक तो ये कि जो बिजनेस हमने बंद किए वो क्यों किए, उसमें कई सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, जैसे कि हम यहाँ से अग्रानी सैटेलाइट, पहला प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट इंडिया से हम लॉन्च करना चाहते थे, तो रेगुलेशन अवेलेबल ही नहीं था ही नहीं कि प्राइवेट सेक्टर से कोई प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च कर सके. और जब तक वो कानून बना, जब तक वो स्थिति आई, उसमें 4 साल निकले. और 4 साल में जब देखा, वो टेलीफोनी का सैटेलाइट था कि डायरेक्टली यहाँ से आपका टेलीफोन, हैंड हेल्ड फ़ोन, सीधा आप सैटेलाइट से बात कर सकेंगे और वो वर्ल्ड में कहीं भी बात आप कर सकेंगे. तो इन 4 साल निकलने में हमारे यहाँ जो मोबाइल फ़ोन्स हैं जो आज आप यूज़ करते हैं, उनकी सबकी भरमार हो गई. तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का कोई औचित्य नहीं रह गया था, इसलिए बंद किया. अब जो दूसरी बात आपने सुनी उसमें कि कोई भी चीज़ हम दूसरे या पहले नंबर पर नहीं हो तो बंद करते हैं, इसमें ईगो नहीं है.
मेरे पास एक लिमिटेड समय है मैनेजमेंट करने के लिए, मेरे पास लिमिटेड और मैनेजमेंट रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड मेरे पास कैपिटल है, उसको कहाँ मैं लगाऊं, ये एक प्रश्न है। उसके लिए बहुत से लोग अपना संस्था में तय कर लेते हैं कि जब तक मुझे 20% रिटर्न मेरी कैपिटल पे नहीं मिलेगा तो मैं वो काम नहीं करूँगा। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, धार्मिक है, कुछ तरह से सोचते हैं, वो कहेंगे कि साहब मैं होटल बिजनेस नहीं करूँगा क्योंकि मैं मीट मच्छी शराब का काम नहीं करूँगा। तो इसी तरह से हमने कहा कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो इंडिया का जो काम करें हम ऐसा करें जो इंडिया में आइदर नंबर 1 हो या 2 हो, उससे नीचे का अगर रहेगा तो उस बिजनेस को हम किसी और को दे देंगे, तुम चलाओ भैया, रोजी रोटी कमाओ अपनी। वी हैव ए कॉलर फ्रॉम गुड़गांव, कैन वी जस्ट टेक नरेश यादव? यस नरेश जी, कहिए क्या प्रश्न है आप? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ, मैं नरेश यादव गुड़गांव से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर मेरा सवाल है कि मैं एक आम आदमी हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, और मैं आज गुड़गांव में बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करने की, लेकिन क्या बिजनेस करूँ कि मैं, मेरे पास कैपिटल 25 लाख है और इंडस्ट्रियल प्लॉट है, लेकिन मेरे को क्या करना चाहिए जो मैं कर सकूँ? देखिए आपने अपना प्रश्न बड़ा अच्छा दिया कि गुड़गांव में आप हो, आपके पास 25 लाख रुपए हैं, हाँ जी, आपके पास इंडस्ट्रियल प्लॉट भी है, हाँ जी। तो फिर क्यों नहीं कर सकते? किस बात का डर है अभी आपको इसमें? सर यही है कि मैंने ना एक लोअर लेवल के काम करके 25 लाख रुपया कमाया है। मैं चाहता हूँ 25 लाख का 25 करोड़ हो जाए, जो कि वो एक दिहाड़ी वाला मजदूर से नहीं हो सकता। तो क्या करना चाहिए, मेरा क्वेश्चन यही है। देखिए अभी आपके जवाब को, मैं आपकी बात के जवाब को थोड़ा सा इस रूप में दूंगा, लेकिन आपको डिटेल में कुछ पूछना हो तो मुझे मेल लिखिए, हम शायद कुछ और देख के आपको ज़्यादा गाइड कर सकें। आपके मन में डर है कि जो आपके पास है वो आपका चला ना जाए। हाँ जी। तो इसके लिए मैंने कई बार कहा है और पहले वीक के एपिसोड में भी कहा और जनरली भी मैं कहता हूँ कि भैया भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। हाँ जी। तो आज आप आज के युग में रहिए, आज के इस पल में रहिए, आपको जो काम लगता हो ये अच्छा करने जैसा है वो करिए, डरिए मत। वो 25 लाख 25 रुपए में नहीं बदलेंगे, हिम्मत रखिए। थैंक यू, थैंक यू। सर मैं बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक कंपनी स्टार्ट करूं, एक बिजनेस स्टार्ट करूं जो कि बहुत बुलंदियों पे पहुंचे। तो अगर मैं आप मुझे ये बताइए सर कि अगर मैं अपनी स्मॉल सेविंग्स में अपना बिजनेस कैसे क्रिएटिविटी के थ्रू अपना आगे लेके जाऊं और मेरा बिजनेस इतने टफ कंपटीशन में स्टैंड कर पाए। वेरी गुड। देखिए आज के युग में ये बात, आपका जो डर है, आपका जो प्रश्न है, ज़्यादा वैलिड नहीं है। आज के दिन भारतवर्ष में भी बहुत से एंजल इन्वेस्टर बन गए हैं, बहुत से फंड आए हुए हैं। अगर आपका कुछ आइडिया अच्छा है तो आपको फंडिंग की कमी नहीं रह सकती। पैसों की वजह से कोई अच्छा आइडिया किल नहीं होता है। और अगर आप DSC डॉक्टर सुभाष चंद्र अशोक को लिखेंगे तो हम आपको ज़रूर संपर्क में करवा देंगे जो लोग फंडिंग कर सकते। सर मेरा नाम शगुन अग्रवाल है, मैं MBA कर रही हूँ एमिटी बिजनेस स्कूल से। सर अभी आपने कहा कि बहुत एंजल इन्वेस्टर्स आजकल बहुत आ गए हैं, बट आपके टाइम में आपने इतनी यंग एज में स्टार्ट किया था, तो आपने कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को किया और फंडिंग कैसे करी? उस समय में इतना स्ट्रक्चर्ड फंडिंग वगैरह अवेलेबल नहीं थी, लेकिन इनफॉर्मल फंडिंग की कमी नहीं थी। आपको अपना क्रेडिबिलिटी अगर आप दिखाएंगे, जो कि हमने काम जब मैंने यंग एज में शुरू किया तो हमने दिखाया कि आई एम ए क्रेडिबल पर्सन। तो इनफॉर्मल तरीके से जो मिलने जुलने वाले हैं, मित्र हैं, कोई बिजनेस एसोसिएट्स हैं, और उस प्रकार से कुछ बैंक्स भी मिले जिन्होंने मुझे फंडिंग किया।
बहुत ज़्यादा ये जो मैंने इनको कहा, जो एंजल फंड्स की या दूसरे वेंचर फंड्स की, वो तो एक किस्म से आपके साथ आज के दिन में वो आपके रिस्क में भी भागीदार होते हैं, वो रिस्क लेते हैं आपके साथ। लेकिन हमारे उस समय में, आज से 40 साल पहले, 42 साल पहले ऐसा नहीं था। वो हम लोन ले सकते थे लोगों से, कामयाब होना या फेल होना ये अपने ऊपर था। अभी हम निकलते हैं सेकंड हर्डल। सेकंड हर्डल टू बी क्रिएटिव इज अ परफेक्शनिज्म। व्हेन यू वांट टू डू एवरीथिंग प्रिसाइसली राइट, you are a perfectionist and they behave in a very different fashion. उनको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो किसी के घर भी जाएंगे तो उनके घर में सब देख के, अच्छा ये तो बल्ब तो ठीक से नहीं चल रहा, अरे भाभी जी आपने यहाँ पे एंट्री के ऊपर ये फ्लावर बॉस क्यों रखा हुआ है। तो कुछ ना कुछ वो उनको, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट हैं, कुछ गलत नहीं है परफेक्शनिस्ट होना, लेकिन एक किस तरह की, दिस इज एन पैराडॉक्स दैट ए रियल क्रिएटर knows that he has not created. He has not created anything. The existence has worked through him. The creative creation has worked through him. And it has possessed him rather than him possessing something. मैं इसका एक आपको उदाहरण दूंगा। जब जी टीवी, द फर्स्ट सैटेलाइट चैनल सक्सेसफुल हुआ इस देश में 92 में, तो 93 जून के आसपास की बात है। हमारे जो टॉप के 5-6 लोग थे, कभी कभी उनसे जब उनकी बातें सुनते थे, बैठते कभी, तो कहते साहब हमने तो बड़ा अच्छा क्रिएट कर दिया ना, जी टीवी देखिए इज़ आवर क्रिएशन, आपने बताया हमने क्रिएट कर दिया। सबको ये हो गया कि मैंने क्रिएट किया है ये। तो एक रोज़ सब 5-6 बैठे थे साथ में, मैंने उनसे कहा देखो भाई मेरा तो मानना अलग है, ZTV has created us rather than us creating ZTV. और क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्रा तो वही सुभाष चंद्रा था जब जी से शुरू हुआ, उससे पहले भी। मैं कहा सो एंड सो यू आर ऑल्सो द सेम पर्सन। उस वक़्त हमको कोई बुलाता तक नहीं था पार्टी में अपने घर पे। आज मेरे पास होते हैं सुबह से लेके शाम तक 20 इनविटेशन आज शाम के लिए। तो भाई ये उस बक्से ने क्रिएट किया है जो हमको ये लोग बुला रहे हैं, हम वही के वही हैं। सो बिलीव यू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट दिस इज द रियल आर्ट ऑफ बीइंग अ क्रिएटर rather than being perfectionist, where the artist self disappears. अभी आज मैं कहीं आते वक्त एक किसी के घर पे मिला तो एक गाना सुन रहा था। वो क्या गाना है बच्चों का, नानी तेरी मोरनी को मोल ले गए, बाकी जो बचा था काले चोल ले गए। आज ये गाना देखिए कब का बना हुआ है। It has become immortal, it has become religiousness. That is the creator. आपको पता भी नहीं होगा, हमको पता भी नहीं होगा किसने वो गाना क्रिएट किया। आज के भी बच्चे उसको बड़े प्यार से सुनते हैं, गाते हैं। That's why they say that the artist is a mystic, not only technically right, but existentially authentic. The less of the artist is in his work, the more perfect it is. This is the second thing. And then comes the third one, which is our intellect. Our intellect comes in the way of creativity. Intellect is, again, ego, but intelligence is, don't worry, have courage. The fourth hurdle in us is our belief system, belief. A creator will never carry many beliefs, in fact, none. He will carry only his own experience. That's what I said to you, that I'm here to give you experience. I'm not teaching you creativity in that sense, or nothing creative is going on here. I'm just sharing my experience so that you can make utilization. Maybe you can use this when you become creative. And the beauty of experience is that the experience is always open, because further exploration is possible. Belief is always closed. Belief is always finished.
क्योंकि बताया है, मम्मी ने बताया ना, कैसे हो ही नहीं सकता ये बात। अरे मेरे पापा के पास आते हैं, उनके बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, वो ही इज PhD इन फिलोसफी, उन्होंने बताया दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग फियरलेस। योर एक्सपीरियंस is moving from known to the unknown, because your experience is taking you, it's not finished. That's why you will always encounter the unknown territories more often. That's why he says the experience takes you from known to unknown territories. And remember, experience has a beauty because it is unfinished. Some of the great songs, some of the great artworks, some of the great creations, even today are unfinished. Let's understand with a story for the full finished or unfinished work. A king, राजा, एक बड़े एक्सपर्ट जैन मास्टर के पास गए, उनसे कहा कि भगवान मुझे एक बहुत बढ़िया, मेरे पास मेरे महल के बाद 200 एकड़ जगह है, उसमें मुझे बहुत अच्छा एक गार्डन बनाना है, आप मुझे गाइड कीजिए। तो मास्टर ने उनको सिखाना शुरू किया गार्डनिंग। किंग जो थे वो उनसे पूछते थे, उनसे समझते थे, और जो उन्होंने हज़ारों गार्डनर लगा रखे थे उनके साथ मिलके उसको गार्डन को काम करते थे। वो गार्डन को अपने मास्टर को नहीं दिखाना चाहता था जब तक वो फिनिश ना कर ले, क्योंकि वो देखना चाहता था कि मैंने पूरा समझा कि नहीं समझा। तो वो राजा देखना चाहता था कि मैंने क्या समझा, वाकई समझा कि नहीं। तो 3 साल कंप्लीट करने के बाद उसने अपने मास्टर को बुलाया कि साहब आइए देखिए मेरा गार्डन, देखिए मैंने आपकी बात ठीक से समझी, या ठीक से समझी तो उसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया। मास्टर के वो जहाँ भी जाए, राजा घबरा गए कि क्या हुआ, ये तो अपना ऐसे हिला रहे जैसे इनको कुछ पसंद नहीं आ रहा, कुछ बुरा लग रहा। डर गए राजा कि ये तो मुझे डांटेंगे। तो उसने कहा कि भाई ये इस गार्डन में सूखे हुए पत्ते कहाँ हैं, पेड़ से झड़ के पत्ते कहाँ हैं गिरे हुए। दिस इज टू serene. God has never created any such perfect thing. You have finished it like it is dead. और उस मास्टर ने बाहर दौड़ के गार्डन के बाहर गए जहाँ पे वो सूखे हुए पत्तों का ढेर था, उस ढेर में से खूब सारे पत्ते उठाए और उसको हवा में फेंक दिया। वो सूखे पत्तों की आवाज़, उनके गिरने की जो उसमें म्यूज़िक क्रिएट हुआ, दैट इज़ व्हाट वो गार्डन में फिर वापस जान आए। नाउ द गार्डन हैड ए विस्पर, otherwise it was dull like a crematory, you know. The silence was not alive. And the 5th one is the fame game. We want to become famous. Actually our work should be important, and that is a joy in itself. If at all, if sometime the work is not recognized by people, not because you enjoy being creative, you love the work for its own sake. This should be the way of looking at things, to my mind, not rather seeking fame out of this creativity. You work if you love it, don't ask for recognition. If it comes, take it easily. If it does not come, don't think about it. Your fulfillment should be in the work itself. And if everybody learns this simple art of loving his own work, whatever it is, enjoying it without asking for any recognition, we would have a more beautiful and celebrating world. There lies my question that earning money is easy, but earning viewership is very hard, and you have done that. So I'll consider you my role model. My simple question, did you carry your ethics and morals from 1992 till date to make Zee Network one of the highest viewership channel? Thank you. देखिए, ज़िंदगी में मोरल वैल्यूज़ के बिना आप कहीं ज़्यादा दूर नहीं पहुंच सकते, लेकिन बहुत बार इन मोरल वैल्यूज़ को भी लोग टार्निश करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन फिर भी आप बिना डरे बिना झिझके अपना काम पे लगे रहें तो ये बढ़ते चले जाएगा। हमने अपना जो आपने कहा 700 मिलियन व्यूअर हमारे हिंदुस्तान में हैं, 100 मिलियन हमारे भारतवर्ष के आगे बाहर और हैं, तो ऑलरेडी हम 800 पे पहुंच चुके हैं और हमारा टारगेट 2020 तक करीब 1.2 बिलियन लोगों तक पहुंचने का है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन के कारण जापान और यूएसए जैसे देश बहुत आगे जा रहे हैं, तो इंडिया पीछे क्यों है और हम उनके बराबर कैसे आ सकते हैं? ये आपका गलत विश्वास है। ये इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि बाहर के देश सारे अच्छे हैं और अपना देश पीछे है। इस मेंटालिटी से हमको निकलना पड़ेगा। क्यों कहते हैं कि आप अमेरिका बड़ा अच्छा है और क्रिएटिविटी से आगे बढ़ रहे हैं? आप कहाँ नहीं बढ़ रहे हैं? आप एग्जाम्पल सुनिए मेरे से। आपके पास सड़कों की कमी है, काम हो रहा है, आप कर लेंगे, सड़कें और बना लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयार कर लेंगे, आपका जीडीपी ग्रोथ जो नीचे गिर गया वो और आगे फिर वापस बढ़ने लगेगा, फिर वापस शायद अगले 3 साल 4 साल में इस सरकार के कुछ आंकड़े हम देख रहे थे, उसमें वो उनका टारगेट है कि 9-10% तक हम लेके जाएंगे। ये जो चीज़ें आप देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, वो सब कुछ नहीं है। यहाँ पे जब रेप हुआ दिल्ली में, जो भी हुआ उस बस में, वो कहानी आप सबको जहन में अभी भी याद होगी। और उस समय की अगर आप स्थिति याद करें तो इस देश के अंदर एक तरफ से ऑयल की प्राइस कीमतें बढ़ती जा रही थी, हमारी ग्रोथ रेट कम होते जा रहा था, स्टॉक मार्केट प्राइस गिरती जा रही थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बड़े लिमिटेड काफ़ी क्लोज लोअर लेवल पे आ गए थे। लेकिन 4 दिन तक इस देश ने एक लड़की का जो रेप हुआ उसके ऊपर पूरा सब कुछ रुक गया, सारी चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। उसके सामने एक अंग्रेज़ लंदन की ऑब्जर्वर अखबार में उसी वक़्त उस औरत ने लिखा, उन्होंने एक जगह का उदाहरण दिया है कि वहाँ की अमेरिका की सॉकर टीम के कुछ लड़कों ने, 5 या 6 लड़कों ने एक लड़की को रेप किया, बार बार रेप किया, 5 दिन तक लगातार रेप किया, पर उस लड़की का कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और 1 महीने 1.5 महीने बाद जब, क्योंकि वहाँ पे किसी ने ट्विटर पे या फेसबुक पे डाला, तो 1 महीने बाद उसको एफआईआर दर्ज हुई। वहाँ पे अमेरिका जिस कंट्री के आप उदाहरण देते हैं, आप उसकी कस्में खाते हैं, मैं कहता हूँ उस शर्म से निकलिए। एवरी 3rd गर्ल इन दैट कंट्री एग्जिस्टिंग हैज बीन रेप्ड। यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सिचुएशन हियर इन दिस कंट्री। अभी भी औरत की इज्जत है। ये पूरा देश थम गया एक लड़की के रेप की वजह से। उसके बाद चाहे कानून बने, कुछ हुआ, तो ये मत कहिए। इस बात के लिए सॉरी, मुझे थोड़ा आई एम वेरी इमोशनल, लेकिन ठीक नहीं। There are 4 keys to become more creative. First one itself is to be a child again in your life. If you will look at life after becoming a child, you will see that nothing is difficult. And the second is be a learner. Learn things. Don't be negative thinking. If you will learn with positive mindset, you will find things very easy. Third is find the nirvana in the ordinary things. As I said earlier, that creativity is not the hallmark of only of some few creator of arts. Everything, there can be creativity in every little thing. Has any gardener who have created a beautiful garden received a Nobel Prize today? Nobody. And a farmer who work in the fields and bring nourishment to all of us, has he ever been rewarded? So that's where it's an ugly demarcation. We create also ourselves that ugly demarcation. Every creative soul, it doesn't matter who he creates, should be respected and honored. So that creativity itself is honored. But even in the world,
Even some politicians are award winners or Nobel Prize winners. Generally, we believe that they are not a class which should get a Nobel Peace Prize or that kind of a thing, but there are. They are clever people. That's all is their creativity. They say there is an example of President Abraham Lincoln in a Senate. He was son of a shoemaker. ये तो पता आपने पढ़ा है कहीं. And he became the president of America in a natural manner. So उसने Senate में कहा कि भाई that something which should be remembered by everyone. He said, I am grateful to you for reminding me of my father just before I gave my first address to the Senate. उस जूते दिखाए थे लोगों ने. उस पर उन्होंने कहा, my father was so beautiful and such a creative artist. There was no other man who could make such beautiful shoes. He says further that I knew perfectly well that whatever I do, whatever I become, I'll never be such a great president as he was a great creator. He says about his father. I cannot surpass him. But then he paused and said, by the way, I want to remind all of my aristocrat friends that if the shoes made by my father are pinching you, I have also learned about the art with him. I am not a great shoemaker, but at least I can correct your shoes. You just inform me, I'll come to your house. So he embarrassed all the people, those who were throwing shoes on him. And that there was a great silence in the whole Senate. Nobody knew what to say. But after that, the senators understood that it was very impossible to humiliate this man. But he had shown a tremendous respect for creativity. I would say, close with a little bit of an anecdote, and probably that will make you smile even when you are not doing anything, sleeping in your bed. Because there was a woman who was worried about or a couple worried about their lackluster sex life. The young wife finally persuaded her husband to undergo some hypnotic treatment so that he can be much better when they make sex, when they make love. After a few sessions, his sexual interest was kindled again, but during the love-making, he would occasionally dash out of the bedroom, go to the bathroom, and come back again. The wife was curious, naturally. She followed once when he went to the bathroom. दरवाजे के कोनों से देखा उसने वो क्या कर रहा है अंदर. तो उसने क्या देखा, वो अपने मिरर के सामने खड़ा हुआ है और बार बार क्या कह रहा है, शी इज नॉट माई वाइफ, शी इज नॉट माई वाइफ. So with this, I would say that with this thing, we will close this session here. You can take things from it, and I hope they are useful to you. And spread the message of creativity as much as you have understood. Try to practice the consciousness. It will come to you slowly. Do not leave it halfway. Okay, thank you very much. जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाषचंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा 57575 वर. तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर. झी 24 तास रहा
एक पाऊल पुढे